Hello everyone, today we will be starting with the two hinge arches. So what is a two hinge arch? Now there are only two hinges here. Okay, suppose this is an arch and one hinge is here and other is here. So there are two unknown reactions here. One is horizontal, one is a horizontal and one is vertical. Okay, here also one vertical and one horizontal. Okay, that is vertical is denoted by RB here. So this is the span, and suppose I'm taking that there is a concentrated load W at the ground. So when you are dealing with this type of numericals or questions, first of all, in this arch, this is an indeterminate structure. How the number of unknown reactions are one, two. Here you can see that this is one, this is two, this is three, this is four. So number of unknown reactions are four. So degree of static indeterminacy is 4 minus 3. 3 is the equilibrium equation. So it is indeterminate by 1. So two hinge arch is an indeterminate structure of first degree. This is first degree. Hence to analyze it, one additional compatibility condition is required, that is RA and RB are the these can be determined by taking moments about either end. इनको तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट पे अगर मेरे को आरबी कैलकुलेट करना है, मैं इस पॉइंट पे मोमेंट की वैल्यू निकाल दूंगा, आर ए निकालना है तो इस पॉइंट पे मोमेंट की वैल्यू निकाल दूंगा. ओके, the horizontal thrust at each support may be determined from the condition that the horizontal displacement of the either end with respect to the other is zero. अब उसको कैलकुलेट करने के लिए, अब देखिए अननोन रिएक्शंस हमारे पास 4 हैं, बट ये निकलेगा कैसे हो, इसको निकालने के लिए हमें एक एडिशनल कंपैटिबिलिटी कंडीशन चाहिए, जो कि कंडीशन है यहाँ पे del u अपॉन del h इज इक्वल टू 0. दैट इज u इज द स्ट्रेन एनर्जी, टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू बेंडिंग. अब ये तो हमारी बात हुई कंपैटिबिलिटी इक्वेशन की. सो ये हम आगे जाके देखेंगे फ्लेक्सिबिलिटी मेथड में, that how do we calculate when there is and when the structure is indeterminate by 1 degree, then by 2 degree. We will discuss that in the next unit. So first you must know that this is the compatibility equation which is required to solve this two hinge problem. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब ये हमारे कंपेटिबिलिटी इक्वेशन मालूम है मेरे को, मैं क्या करूँगा, उसकी जितनी भी स्टोर एनर्जी है ड्यू टू बेंडिंग, टोटल स्ट्रेन एनर्जी, आई विल बी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट व्हिच आई नीड टू कैलकुलेट, दैट शुड बी इक्वल टू 0. सो अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी यू नो ड्यू टू बेंडिंग स्टोर्ड ड्यू टू बेंडिंग इज u is equal to integration mx square moment at that point square into ds upon 2e. ठीक है, अब ये mx क्या है, देखिए ये सेक्शन कट किया है इस पॉइंट पे x, इस पॉइंट पे मोमेंट इक्वेशन क्या होगी, मोमेंट इक्वेशन आप निकाल सकते हैं, दैट इज ra into perpendicular distance, that is ra into x, and one is h into y, that is producing an anti-clockwise movement. So equation will be mx equal to rax minus hy. So this is the moment equation at x-axis. So note that rax is a beam moment due to vertical force. ये क्या है, beam ra into x क्या होता है, beam moment. अगर suppose कीजिए कि यहाँ पे अगर एक beam होती, ऐसे एक बीम होती, तो यहाँ पर हमारा एक वर्टिकल रिएक्शन होता आर एंड वन हॉरिजॉन्टल दैट इज एच, और एक्स एक्सिस पे हम करते तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनती, अगर ये डिस्टेंस x होता तो हमारा मोमेंट इक्वेशन एट x mx विल बी इक्वल टू आर ए इंटू एक्स. तो आर ए इंटू एक्स क्या है, बीम मोमेंट बोल रहा है ड्यू टू वर्टिकल फोर्स. सो आर ए इंटू एक्स को हमने क्या कर दिया, कैपिटल एम ले लिया यहाँ पर, that is beam moment. So mx equal to m, that is beam moment minus horizontal thrust into y is the rise of that point.
बिकॉज ये क्या है, कर्व सेक्शन है, कर्व सेक्शन में है। अब यहाँ पे से हम नीचे, हिंज तो नीचे है, अब इस पॉइंट से उस पॉइंट पे जहाँ पे सेक्शन कट किया है वहाँ पे से डिस्टेंस कितना है, y। ओके, सो दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में इंटीग्रेशन की। सो u इज इक्वल टू mx की जगह क्या आ जाएगा, m माइनस एच वाई स्क्वायर डी एस पॉन टू ई आई। ओके, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल यू अपॉन डेल एच, एच के रिस्पेक्ट में। सो टू आगे आ जाएगा एम माइनस एच वाई, एंड माइनस एच वाई का माइनस वाई रह जाएगा अपॉन टू ई आई इंटू डी एस इक्वल टू जीरो। सो अब इसको अलग अलग कीजिए आप। दिस टर्म इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये देखिए, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एम वाई डी एस अपॉन ई आई प्लस एच वाई स्क्वायर डी एस अपॉन ई आई। तो इसको सॉल्व करेंगे, सो एच की टर्म जो है वो ये आ जाएगी, दैट इज एम वाई डी एस अपॉन वाई स्क्वायर डी एस, ई आई इज कॉन्स्टेंट देन। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया ड्यू फॉर सॉल्विंग दी टू हिंज आर्च। उसको सॉल्व करना है तो आपको ये इनपुट करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला। आई होप ये फॉर्मूला कैसा है ये समझ में आ गया आपको। दिस इज ड्यू टू दी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, और m यहाँ पे क्या है, बीम मूवमेंट है। ठीक है, अब देखिए हम एक न्यूमेरिकल से इसको समझते हैं। टू हिंज सेमी सर्कुलर आर सब्जेक्टेड टू अ कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट अ क्राउन। अब यही कंडीशन है। अब इसमें क्राउन पे एक पॉइंट लोड लगा है, तो अब हम क्या करेंगे, रिएक्शंस निकालेंगे। पहले आप इक्वेशन लगाएंगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन समेशन एफ वाई इक्वल टू जी, जो उससे वैल्यू आएगी आर ए प्लस आर बी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। क्योंकि यहाँ पे जो हमने आर्च बनाया है वो कैसा है, टू इंच आर्च है ऐसे, क्राउन पे उसके लोड है दैट इज डब्ल्यू। ये हिंज हो गए यहाँ पर हिंज हो गए। ठीक है, सो आर ए ये है, आर बी, एच ए ये है, एच बी ये है। अब देखिए वाई डायरेक्शन में आर ए है, आर बी है, इक्वेशन बनेगी आर ए प्लस आर बी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। यहाँ से इक्वेशन आ गई आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, अब किसी एक हिंज पे मैंने मोमेंट लिया है, मोमेंट एट ए पॉइंट शुड बी इक्वल टू जीरो समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट। सो इक्वेशन है आर ए इंटू टू आर। अब ये कैसा आर्च है, सेमी सर्कुलर आर्च है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज टू आर, आर आर प्लस आर दैट इज टू आर। सो आर ए इंटू टू आर माइनस डब्ल्यू इंटू आर दैट इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से आर बी की वैल्यू आ गई डब्ल्यू बाई टू, आर ए की वैल्यू आ गई डब्ल्यू बाई टू। आप इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते थे बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल लोडिंग। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बताया, दैट एच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम वाई डी एस अपॉन वाई स्क्वायर डी एस। ठीक है, अब डी एस को कई समझ रहे होंगे ये है क्या। जब हम x की बात कर रहे थे तो x डिस्टेंस ऐसा था। अब जब ये कर्व्ड सेक्शन है, कर्व्ड सेक्शन है, तो ये जितना डिस्टेंस हम यहाँ से कट करेंगे कर्व्ड वाले पार्ट, दैट इज डिनोटेड बाय s। ठीक है, ये कितना है s, तो ये s आ गया आपका, समझ रहे हैं आप। ये कर्व्ड पार्ट है दैट इज डिनोटेड बाय s। अब देखिए हमने क्या किया, एक स्मॉल सा सेक्शन कट किया उस आर्ट से, ये इसको समझेंगे डायग्राम बना के, सेमी सर्कुलर आर्च। ठीक है, अब ये क्राउन है इसका, यहाँ पर एक लोडिंग है दैट इज डब्ल्यू। ये डिस्टेंस होगा आपका कैपिटल आर, ये वाला भी आर, ये वाला भी आर। यहाँ से इस पॉइंट पे जहाँ पे एक्स एक्सिस कट है, तो वहाँ पे क्या है, हमने ये कट किया और एक स्मॉल एंगल भी इस पे एक सेगमेंट लिया है डी थीटा का, जिससे ये हमें बताएगा ये कितना है, दैट इज डी एस, स्मॉल डी एस। डी एस इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस आर है तो ये आर का फॉर्मूला आएगा डी एस इज इक्वल टू आर डी थीटा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है y और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है x। अब ये मालूम है, आप ये निकाल सकते हैं। अब ये थीटा है, कैसे, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज,
बेस क्या है इसका, ये x है, ये r माइनस x अपॉन hypotenuse is r, so r cos theta equal to r minus x, x equal to r1 minus cos theta। तो ये आ गया आपकी x की वैल्यू। वैसे ही आप y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y ये है हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है, थीटा के रिस्पेक्ट में। सो मैं फॉर्मूला लगाता हूँ साइन थीटा का, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज y अपॉन हाइपोटेन्यूज इज r, सो y इज इक्वल टू r साइन थीटा। ये आ गया हमारा फॉर्मूला। अब x भी हमको मालूम है, y भी हमको मालूम है, अब ये चीज हमको पता लगी। अब मोमेंट एट x की इक्वेशन क्या होगी, r a इंटू एक्स, ये कैपिटल M की वैल्यू दैट इज बीम मोमेंट, सो आर ए की वैल्यू क्या है हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी थी, दैट इज W/2, सो W/2 इंटू एक्स। अब ये आ गया आपका वैल्यू, आप इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज लगाइए। अब देखिए हमने यहाँ पे वैल्यूज इनपुट करी, एम वाई, अब ये क्या है W/2 इंटू एक्स, एम की जगह आ जाएगा W/2 इंटू एक्स, एक्स क्या है r ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, r1 ब्रैकेट माइनस कॉस थीटा इंटू ds। अब ds क्या है r d थीटा, r d थीटा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब y भी है इसके साथ, m के साथ y भी है, y क्या है हमारा r साइन थीटा, तो ये भी आ गया, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर ds, y स्क्वायर क्या हो जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। अब इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, ये देखिए 0 से π/2 तक हम जा रहे हैं, हमें जाना है 0 से π/2 तक, ये तो इसकी लिमिट हो गई। एक्चुअल में इसकी लिमिट क्या है, हम जब इसको सॉल्व कर रहे हैं 0 टू पाई, 0 टू पाई, अभी आपने लिमिट्स वाले इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा, जब इसको हम ये π/2 करेंगे और इसका ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ दिस, लिमिट चेंज करने के लिए, तो ये क्या हो गया 2 बाहर आ गया, 0 टू π/2 हो गया। एक्चुअल में ये 180 तक हमको इंटीग्रेट करना था, ओके 0 टू पाई, बट इसको हमने लिमिट्स चेंज करी तो यहाँ पे क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो वैसे ही यहाँ पे नीचे में भी फॉलो होगा, तो W इंटू आर और इंटू आर, तो आर क्यूब, W इंटू आर क्यूब आ गया ऊपर, 0 टू π/2 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, बाहर भी यहाँ आर क्यूब आ जाएगा, सो आर क्यूब से अब हम इसको सॉल्व करेंगे, दैट ये आ गया हमारा वैल्यू WR³ बाय 2, अंदर बचेगा आपका साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 2, ये कैसे आया, साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, साइन 2 थीटा को डिवाइड बाय 2 कर दिया तो वो क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, तो वैसे ही यहाँ पे क्या किया है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हमने ये लिख दिया साइन 2 थीटा अपॉन 2 इंटू डी थीटा, ठीक है। आई होप ये समझ आइए, इसको करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। अब 0 टू π/2 ये वैल्यू आ गई, ये आपने सॉल्व कर लिया। अब साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, आपके पास वैल्यू बचेगी आपकी π/4, यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, अब पहले हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स के लिए अगर हमको इंटीग्रेशन करना है तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लिखेंगे 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, ये होल अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स को हम ऐसे लिखेंगे। अब हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, पहले 1/2 माइनस कॉस 2x अपॉन, एक बार इंटीग्रेट होगा, ये एक बार इंटीग्रेट होगा, ठीक है। सो आप इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी दैट इज h इक्वल टू W/π।
ठीक है। अब एक स्पेशल केस यह है कि इफ कॉन्सेंट्रेटेड लोड W acts at any point which makes an angle alpha from the horizontal on semicircular two hinge arcs, the horizontal thrust is given by, अगर देखिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड है एट एन एंगल ऑफ अल्फा, सो वहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा W बाई पाई इंटू साइन स्क्वायर। तो ये स्पेशल केस हो गया। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। तो you need to solve this by yourself first. Okay, so thank you very much.